मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं जो वीडियो दिया था, मैं आशा करता हूँ कि आप भली भांति देखे होंगे। मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिया था और साथ ही सभी क्वेश्चंस का आंसर भी मैं डिस्कस कर दिया था। लेकिन आज के वीडियो में जो चैप्टर 1 से है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, all the questions what will be given today, they are belong to chapter 1, but they are short questions, not very short questions. This question what will be given today carry 3 marks, क्योंकि चैप्टर 1 से 1 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चन, ये 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चे आप देखिए, अब मैं यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसके मार्क्स 3 है। वो शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस 3 मार्क्स, 3 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। Question number 1, you all will see very carefully. I am giving very important question. Question 1 है 33% area should be under forests. 33% area should be under forests, right? Justify statement highlighting environmental values of forest, values of forest. First of all, understand the question. 33% area should be under forest. Understand? Under forest. Justify the statement highlighting the environmental values of forest. बच्चे आप जानते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। You know that how forests are very important to us. How forests are very important to protect our environment. You know that 33% area should be covered in any region of the total geographical area of that region as per international value. In order to maintain ecological balance, at least 33% area should be covered with forest. आप जानते हैं, लेकिन इंडिया में कितना है? इंडिया में 19.39% एरिया फॉरेस्ट कवर है। Actually, in our country, in India, 19.39% area is covered with forest. But this is not, it is not as per required. यह रिक्वायरमेंट कितना है? 33% एरिया है। मान लो कि 20% एरिया ही यहाँ पर 20% एरिया टोटल है, फिर भी 13% एरिया क्या है? कम है। 13% एरिया लेस है। तो मैं अभी क्या बताया कि 33% एरिया शुड बी कवर्ड इन एनी रीजन ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में मुश्किल से 20% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है, 13% अभी कम है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द एनवायरमेंटल वैल्यूज ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको जानना है कि हाउ फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। यू नो दैट देयर आर 3 सपोर्ट मटेरियल्स, यानी एयर, वाटर और सॉइल। ये लाइफ सपोर्टिंग मटेरियल है, एयर, वाटर एंड सॉइल। अब आपको ये जानना चाहिए कि एयर, वाटर और सॉइल को शुद्ध करने में इसकी अवेलेबिलिटी, अर्थ पर इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी प्यूरिटी, सॉइल की फर्टिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी और प्यूरिटी, एयर की प्यूरिटी में फॉरेस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। दे आर द फॉरेस्ट which provide oxygen in the atmosphere, right? They are the forests which are very important part of environment that is responsible for occurrence of rainfall. ठीक, यानी बारिश के होने में, वर्षा के होने में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। And you also know that forests are also very important part of environment for the formation of soil. Humus are formed. Formation of humus that is found in the uppermost part of soil, and it consists of forest material. Right? So forests are very important parts for the formation of soil, availability of water in the form of rainfall, and purification of air, and also for providing oxygen to the atmosphere. Thus, I would like to say that for environmental point of view, forests are very important. ठीक, another, अब यहाँ पर अदर रीजन और क्या हो सकता है, तो फॉरेस्ट also very important resources, natural resources, from where we can obtain minerals. We can also obtain various medicinal plants, a variety of medicinal plants, minerals also. For example, कोल क्या है? यह एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट ही है जो कि बहुत वर्षों तक, लाखों वर्ष तक यह जमीन के अंदर गड़ा रहा। कोल इज नोन एज फॉसिल फ्यूल। यह फॉरेस्ट का ही प्रोडक्ट तो है। तो फॉरेस्ट फॉर इन्वायरमेंट, इफ यू स्टडी फॉर इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन अंडरस्टैंड दैट फॉरेस्ट are very important for part of environment to make it pollution free. environment को pollution free रखने में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और फॉरेस्ट बहुत चीज हमें मिलती है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, राइट? नाउ अदर क्वेश्चन हियर। चिल्ड्रेन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जस्टिफाई विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। अटमोस्ट इंपॉर्टेंस मीन्स क्या होता है? यानी सर्वाधिक इंपॉर्टेंट। नेचर हैज गिवन अस ए वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ए वैरायटी ऑफ रिसोर्सेस टू बट न्यूमरस गिफ्ट्स आर गिवन बाय नेचर टू अस। Among them, land is most important natural resource. How? क्योंकि लैंड तो है जो सपोर्ट करता है हमारा लाइफ को। लैंड सपोर्ट्स द बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स। मोस्ट ऑफ रिसोर्सेस लाइक वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, मिनरल्स, soils, water resources, all these resources are found on land. Thus, we can say that land contains not only one or two types of resources, but most of resources are found, they are concerned directly or indirectly with land. For example, soil. Soil is a resource that is found on land, and soil, you know that soil is a very important resource for agriculture activity. Soil supports agriculture, production of food, and where is soil found? Soil is found on land. Next point, forests.
wildlife, water resources, minerals. Where the resources are found? They are found on land. They are concerned with land. Now, so we can say that it is the land that supports all the resources. Not only natural resources, but almost all the man-made resources are also totally based on land. हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं. कहाँ बनाते हैं? वी ऑल्सो डेवलप सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स. कहाँ बनाते हैं? गांव, शहर, देश, कंटिनेंट का निर्माण कहाँ होता है? सब लैंड पर होता है. इसी लैंड पर तो पूरा विश्व है. तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost importance. Right? Now, I am giving other question. Here, you see very carefully. This question number 3. बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है indiscriminate use of natural resources. Natural resources has led to numerous problems. Justify this statement. Indiscriminate means क्या होता है? Indiscriminate means मनमानी ढंग से, बिना विचारे, मनचाहा, ये सभी होता है indiscriminate. Use of nature. Nature has given so many things. A variety of resources have been given by nature. महात्मा गांधी ने भी कहा है कि इस धरती पर नेचुरल रिसोर्स की कमी नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट है. रिसोर्स इज सफिशिएंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द कंट्री, ऑफ द रीजन, बट इट इज इनसफिशिएंट फॉर द ग्रीडी पर्सन, फॉर द ग्रीड. यदि व्यक्ति को लालच हो जाता है तो लालच का कोई सीमा नहीं है, कोई अंत ही नहीं है. तो यदि लालची प्रवृत्ति से यदि उपयोग किया जाए, इसका यदि शोषण किया जाए तो रिसोर्स की कमी हो जाती है. तो अब यहाँ पर यही है क्वेश्चन कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचर रिसोर्सेज हैज लेड टू न्यूमरस प्रॉब्लम्स. व्हाट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड ड्यू टू मिसयूज, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज. लोग जब मनमानी ढंग से यूज करते हैं रिसोर्स का तो बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. अब इससे पहला प्रॉब्लम क्या है? एक तो several resources deplete. Several resources deplete from the earth region. बहुत से रिसोर्स की कमी पड़ जाएगी, ठीक है, शॉर्टेज हो जाएगा. And so many people will suffer a lot due to lack of resources. यदि रिसोर्स का अंधाधुन हम यूज करें तो रिसोर्स क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा. हमारा इन्वायरमेंटल क्या होगा? इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत बुरा हो जाएगा. इन्वायरमेंट विल बी डिग्रेडेड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज. ठीक. दूसरा कारण क्या हो सकता है? Resources are accumulated to a few land. Accumulation of resources to a few people. We have few people, a few hands. यहाँ पर few hands. अब few hands मतलब क्या हुआ? few hands यहाँ पर rich and poor. Accumulation of resources to a few hands results in wide gap. Results in wide gap between haves और have not. यहां पर have किसको बोला गया है? रिच को. रिच एंड have not.
हैव नॉट किसको बोला गया है? पुअर को। रिच और पुअर में काफी गैप हो जाएगा। गरीब गरीब रह जाएंगे और धनी लोग धनी रह जाएंगे। उनके पास हमेशा बहुत अधिक मात्रा में अनावश्यक रूप से रिसोर्स पड़े रहते हैं। तो इस तरह से यदि इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया जाए रिसोर्स का, मनमानी ढंग से, मनचाहा, बिना कंट्रोल, यदि अनियंत्रित ढंग से यदि रिसोर्स का उपयोग किया जाए, लोग करते हैं, तो रिच और पुअर में काफी गैप हो जाएगा। और यहां पर हैव और हैव जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट बच्चे आप भी दे सकते हो कि रिसोर्स का अत्यधिक दोहन किया जाएगा ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन विल आल्सो बी क्रिएट। ठीक, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक, लैंड डिग्रेडेशन जिसे कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ वाटर, ओवर यूज ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन, इट कॉजेज व्हाट? सॉइल इरोजन। ठीक है, ओवर यूज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स आल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन। ठीक है, फ्लो नाउ डिस्चार्जिंग ऑफ एफ्लुएंट्स, industrial effluents towards rivers, lakes, they cause water pollution। तो इस तरह से यदि मनमाने ढंग से हम वेस्ट मटेरियल गिराते रहेंगे नदियों और झीलों में, लेक्स में, तो पानी क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी रिसोर्स का यदि हम मनमानी ढंग से बिना सोचे विचारे यूज करते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट, डायरेक्ट इन्वायरमेंट विल बी अफेक्टेड, नो डाउट। ये हो गया, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई एम गिविंग लास्ट क्वेश्चन हियर, सी हियर। प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। ये लैंड डिग्रेडेशन क्या है? डिटेरियोरेशन द क्वालिटी ऑफ लैंड, मतलब सॉइल इरोजन। ये रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड मीन्स सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ठीक, ये सब क्या है? लैंड डिग्रेडेशन है। तो लैंड डिग्रेडेशन के कारण भी इसी के साथ यह मेजर है। मैं आपको एक कारण बता देता हूं कि व्हाट आर द रीजंस टू लैंड डिग्रेडेशन। रीजंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या है? तो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वारिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, क्वारिंग, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, लेक्स एंड रिवर्स, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, दे आर द रीजंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब यहां पर मेरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मेजर्स टू कंट्रोल, कैसे, हाउ कैन वी कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। तो अब इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं? इसका आंसर क्या हो सकता है? तो एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की जगह पर करते हैं एफॉरेस्टेशन, राइट, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। फिर शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट। अब शेल्टर बेल्ट क्या है? तो रो में हम पेड़ पौधों को लगाते हैं। जैसे ड्राई एरिया में पेड़ पौधों को लगाने से क्या होता है? लाइन्स लगाते हैं, ठीक है, वी प्लांट ट्रीज, प्लांट्स इन लाइन, और वह पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये सैंड ड्यून्स को रोक लेते हैं। सैंड ड्यून्स जो कि पूरे खेत को बर्बाद कर देते हैं, वह सैंड ड्यून्स की स्थिरता हो जाती है शेल्टर बेल्ट में। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द फोर्स ऑफ विंड एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द स्प्रेडिंग सैंड ड्यून्स। तो एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट, ठीक, कंट्रोलिंग व्हाट? ओवरग्रेजिंग। तो मैनेजमेंट ऑफ
management of grazing, right? Now management of waste materials. और जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, ये किधर जाएगा? ऐसा नहीं कि हमारे झीलों, हमारे लेक्स और रिवर को पोल्यूट कर दें, ठीक? तो उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ऐसे बहुत से मेजर्स हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और सॉइल इरोजन मेनली 2 तरह का होता है इंडिया में, क्योंकि आपको तो इंडिया की जगह पढ़ना है। गली इरोजन जिसे पानी बहुत बहता रहता है खेतों से, एक चैनल बन जाता है। चैनल इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय नेचर ड्यू टू अकरेंस ऑफ हेवी रेन, वाटर फ्लोज थ्रू चैनल, एंड soil erosion takes place on large scale that makes the land bad lands. जैसे चंबल बेसिन में, मध्य प्रदेश के चंबल बेसिन में बैड लैंड्स देखने को मिलते हैं। ये हो गया गली इरोजन। और दूसरा क्या है? सीट इरोजन। जब पानी ऊपर से नीचे आता है स्लोपिंग एरिया में, तो पानी जो है जब ऊपर से नीचे आता है तो प्लेन में क्या होता है? खेतों में फैल जाता है, और फैल कर वहाँ पर मिट्टी का अपर जो लेयर है, खेतों का जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज वास्ट में eroded very easily. This is called seat erosion. गली इरोजन और सीट इरोजन, ये 2 इंपॉर्टेंट इंडिया में, या दे आर द 2 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। बच्चे, तो आप ये सब क्वेश्चन जो है, देयर आर अदर क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एज पर माय ओपिनियन दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. You must know the answer of the question.